بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جنوری سن 2010 میں معراج ربانی پر ہندوستان میں گستاخ اولیاء کا مقدمہ درج ہوا اور وہ 11 ماہ تک چلا۔ ضمانت کے بعد اس نے جو انٹرویو دیا اس میں اس نے یہ موقع اختیار کیا کہ اس نے 14-15 سال قبل بھی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بابت کوئی گستاخی کے کلمات نہیں کہے تھے، بلکہ کٹ پیسٹ کر کے آدھی بات ادھر آدھی بات ادھر کر کے موبائل میں ایسے چلائے۔ کلپ سنیں۔ ہماری سیدھیاں 14-15 سال پہلے ٹھیک ہے، ہم نے صوفیائیت کا ایک نقشہ پیش کیا کہ صوفی لوگوں کے ایمان اور عقیدے کیا ہیں۔ ہم نے معین الدین چشتی اجمیری کے تعلق سے بھی کوئی گستاخی کے کلمات نہیں کہے، تو اس کے باوجود بھی اصل میں کیا ہوا، یہ چونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، کٹ پٹ کر کے یہ لوگ جو ہے آدھی بات ادھر آدھی بات ادھر کر کے انہوں نے SMS کے ذریعے موبائل میں ڈال کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش۔ تجھ کو شاید خود نہیں معلوم اپنے گھر کی بات، تجھ کو شاید خود نہیں معلوم اپنے گھر کی بات، جب بصیرت ختم ہو تو کیا پتا دن ہے کہ رات، جب بصیرت ختم ہو تو کیا پتا دن ہے کہ رات۔ محترم سامعین، آپ نے معراج انڈین کا موقف سنا، لیکن اس کا یہ موقف سچائی پر مبنی ہے یا یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں؟ اس کے تعین کے لیے ہم آپ کو 14-15 سالہ پرانی اسی تقریر کا اوریجنل کلپ سناتے ہیں جس میں اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 3 دفعہ گستاخانہ کلمات کہے۔ آپ اس کلپ کی سماعت کے دوران غور کریں کہ اس میں کہیں کٹ پیسٹ نہیں ہوئی۔ کہ ہمارے ہاں جو ملکوں میں یہ کہتے ہیں کہ جی خواجہ اجمیری نے پتہ نہیں ادھر سلام پھیرا تو 90,000 مسلمان ہو گئے اور ادھر سلام پھیرا تو 90 کروڑ ادھر 1000 مسلمان ہو گئے، اس طرح صوفیوں نے سنتوں نے ہمارے دیش میں اسلام کو پھیلایا تھا۔ کذب ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ یہ تو 5ویں 6ٹھی اور 7ویں صدی ہجری کے لوگ تھے جو پہنچے ہیں وہاں پر اور خرافات پہنچائے۔ اسلام تو حضرت عمر فاروق اعظم کے دور ہی میں، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور ہی میں اسلام بامبے کے قریب تھانہ اور کلیان اور اس طرح سے تھانہ اور کلیان اور اسی طرح سے کراچی کے بارڈر پر پہنچ چکا تھا جناب علی۔ اس دور کے اندر خلیج تھانہ بیچ میں دریا آتا ہے تھانہ، وہاں پہنچ چکا تھا اسلام، اور پھر حضرت عثمان غنی اور حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت علی اور اس طرح صحابہ کرام ہی کے دور میں اسلام پہنچ چکا تھا مالابار کی ساحل پر، اور سندھ اور بنو امیہ کے دور کے اندر کیا کہتے ہیں ساحل سندھ کے اوپر، اور کہاں پورا اسلامی سلطنت ہو چکی تھی 2ری صدی ہجری کے اندر۔ یہ تو 6ٹھی صدی میں جا 6ٹھی اور 7ویں صدی میں جا کے ہندوستان میں انہوں نے شرک اور کفر کی بیجیں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ کہاں کے پیدا ہوا، ان سے کہاں اسلام پہنچا پھیلا؟ ان سے اسلام بدنام ہوا ہے، ان سے اسلام کیا ہوا ہے؟ اگر وہ کتابیں جو ہمارے ملکوں میں بزرگوں کے نام پر چل رہی ہیں، جیسے مثلا وہی جو ابھی میں نے خواجہ اجمیری کے نام کی جو کتاب بتلائی، وہ کتاب اور وہ ہے موجود ہے، اس کی پوری پرنٹ کاپی موجود ہے، میں نے صوفی اور شیطان والی ویڈیو کیسٹ میں نے سب کو دکھلائی ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ کشف المحجوب جیسی خرافات جو داتا گنج حجویری کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، اس کے اندر بھی خرافات جو موجود ہیں۔ اگر یہ عقیدے رکھنے والے یہ عقیدے وہ رکھتے تھے اور یقیناً یہ ان کی کتابیں ہیں، اگر یقیناً ان کی یہ کتابیں ہیں تو ہم تحریر دیکھ کر کے یہ حکم لگاتے ہیں یہ کسی مسلمان مومن کی تحریر نہیں بلکہ یہ کافر اور مشرک کی تحریر ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ اثر تجھ پر نہیں کچھ بھی، یوں ہی تو تن کے بیٹھا ہے، اثر تجھ پر نہیں کچھ بھی، یوں ہی تو تن کے بیٹھا ہے، خدائی سارے کافر ہے، تو مومن بن کے بیٹھا ہے، خدائی سارے کافر
सामीन, आपने सुना कि इस मेराज हिंदुस्तानी ने ख्वाजा अजमेरी का नाम लिया और फिर कहा ये तो 6वीं 7वीं हिजरी के लोग थे जो पहुंचे वहां पर और खुराफात पहुंचाई, ये उसकी तारीखी गुस्ताखी है। फिर इसने मजीद गुस्ताखी करते हुए कहा ये तो 6वीं 7वीं सदी में इन्होंने हिंदुस्तान में शिर्क और कुफर की बीजें डाली हुई हैं, इनसे इस्लाम बदनाम हुआ है, ये दूसरी गुस्ताखी है। फिर इसने ख्वाजा अजमेरी और हजरत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों के बारे में कहा यह काफिर और मुशरिक की तहरीर है, ये इसकी तीसरी गुस्ताखी है। सामीन, अब आप भी फैसला करें ये झूठा शख्स किस मुंह से कहता है कि इसने पुरानी तकरीर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बाबत गुस्ताखी के कलमात नहीं कहे थे, और आप भी फैसला करें कि इसके क्लिप में कहां के कट पेस्ट हुई है, और इसी तरह यह तकरीर नेट पर मुख्तलिफ जगह पर भी मौजूद है। क्या आइंदा आप ऐसे झूठे लोगों पर एतमाद करेंगे? मोहतरम सामीन, अब आप मेराज रब्बानी का वो पुराना क्लिप सुने जिसमें इसने हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को ख्वाजा बाबानी हिजरा कहकर गुस्ताखी की। लिबास में वो हजरत ख्वाजा थे, यानी वो मुखन्नस और हिजरा साहब थे, है ना। ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है। आप देखें डिक्शनरी की किताब फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। चुनांचे हमारे यहाँ जो है अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अल्लाह की कसम बता रहे हैं, और ये रजब का महीना आ रहा है, या जमादुस्सानी है ना, ये रजब 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा और आज ही से भीड़ शुरू होगी और चारों तरफ वो ढोले डफलियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं और उनसे कहा जाए तुम कहा जाए तो कहते हैं कि जी हमारी कौम के हजरत है, हम ही नहीं, अगर उर्स में हाजिर होंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें निकाल देंगे। तो बाकायदा ये हिजड़े जाते हैं अजमेर के अंदर और पूरा इज्तिमा होता है, और आज भी अल्लाह की कसम आज भी जाके देखो चारों तरफ से हिजड़े हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से अपनी अपनी टोलियां बना के जाते हैं और ये कहते हैं कि ख्वाजा साहब हमारे ही। सुन लिया आपने, और अगर नहीं समझ में आएगा हो तो फिर एक बार रिपीट कर दूं। ये कह रहे हैं मेराज रब्बानी साहब कि ख्वाजा का मतलब हिजड़ा होता है। पहली बात, ख्वाजा किसको कहते हैं? हिजड़े को। हमारे हिंदुस्तान में हिजड़े को ही कहा जाता है ख्वाजा। दूसरी बात कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के हिजड़े जाते हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि तुम क्यों जाते हो तो कहते क्या करें, ख्वाजा गरीब नवाज हमारी कौम के थे। मतलब ख्वाजा गरीब नवाज माज़अल्लाह में जुमला नहीं बोलना चाह रहा, आप लोग समझदार हैं, समझ चुके होंगे। तो जो लोग ख्वाजा को हिजड़ा कहें वो मुसलमान हो सकते हैं, उसके बाद भी इनका ईमान सलामत है। जिससे इस्लाम लिया उसी से गद्दारी, और जिन किताबों की हवाले दे रहा है मालूम होता है ये जाहिलों का नाम वहाबी होता है। मेरे नजदीक तो जाहिल बोल दो या गवार बोल दो या वहाबी बोल दो, मेरे नजदीक एक ही बात है। आइए मैं उन्हीं लुगातों से बात करूं जिन लुगातों का इसने हवाला दिया, और इसकी खबासत मैं बताऊंगा। इसने एक ही लुगत का हवाला दिया, उसने हवाला दिया फिरोजुल लुगात। मैं 4 लुगत के यहाँ हवाले बताऊंगा आपको। यह है फिरोजुल लुगात जिसका उसने हवाला दिया, यहाँ पे रखी हुई है। ये फिरोजुल लुगात जिसका उसने हवाला दिया, जो उर्दू जबान की मुस्तनद लुगतों में, मुस्तनद डिक्शनरियों में आती है। इस लुगत का सफा नंबर 597 है। इस पर आइए जरा देखें ख्वाजा का मतलब क्या है। ये आपके सामने आ गया। पहला लफ्ज लिखा हुआ है खाजगान, और डिक्शनरी में लिखा है खाजगान ख्वाजा की जमा। खाजगान ख्वाजा की जमा, मालिक, आका, सरदार लोग, और वो ख्वाजा का मतलब हिजड़ा बता रहा है। फिर उसके बाद लिखा है ख्वाजा, खुदाबंद, साहिब, सरदार, आका, तौरान में सादात का लकब। सादात कहते हैं सैयद घराने के लोगों को, सैयदों का लकब है। तौरान जो ईरान का शहर है वहां का, कश्मीरियों का लकब। अब उसके बाद चौथे नंबर पर एक लफ्ज लिखा है हिजड़ा। यानी ख्वाजा के पहले कितने मायने लिखे हैं लुगत के अंदर? पहले लिखा है खुदाबंद, साहिब, सरदार, आका, तौरान में सादात का लकब। ये सारे अलकाबात को छोड़ के उसने आखिरी वाला पकड़ा। इससे मतलब पता चलता है कि इसके दिल में बुक्स था। आइए दूसरी लुगत को मैं बताऊं आपको। ख्वाजा दर हकीकत फारसी जबान का लफ्ज है, ये अरबी का नहीं है, ये उर्दू का नहीं है। चुनांचे उसके लिए फारसी की लुगत जो मेरे हाथ में इस वक्त लुगाते किशोरी, ये फारसी जबान की मुस्तनद लुगतों में मानी जाती है। बड़े बड़े फारसी के पढ़ने वाले उलमा, अपने वक्त के आलिम फादिल इस लुगात से ही फारसी के अल्फाजों से मदद लिया करते हैं। और भी लुगातें हैं, लेकिन लुगाते किशोरी एक मुस्तनद तरीन लुगतों में से है। लुगाते किशोरी में ख्वाजा का क्या मतलब बताया, जरा ये देखिए। लुगाते किशोरी का सफा नंबर 177 है। इसमें भी लफ्ज ख्वाजा आपको नजर आएगा, ख्वाजा। अब यहां लिखा जाता है साहिब खाना, घर का मालिक, सरदार,
पीर, मालदार, हाकिम, साहिब जमीयत, दिल, रूह। अब यह आखिरी मीनिंग है, वो खिदमतगार जिसका आला तनासुल काट डाला गया हो। फिर आगे लिखता है तौरान में लक़ब सादात का होता है और बामायने वजीर बादशाह के भी मुस्तआमल हुआ है, यानी वजीर और बादशाह के भी लफ्ज में इस्तेमाल होता है। ये सारे अच्छे लफ्ज उसने छोड़ दिया उस खबीस ने, और लफ्ज कौन सा पकड़ा उसने? हिजड़ा वाला। जबकि यहां पर दो चीजें और आप सामने देखिए, एक लिखा है ये किसका लक़ब है? मालिक रोजे कयामत, मुराद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ख्वाजा कहा गया है, हजरत खिज़र को भी ख्वाजा कहा गया है। तो जब ये किसी बुजुर्ग की तरफ निस्बत की जाती है ख्वाजा की, तो इससे मुराद मालिक, आका, सरदार ये लिया जाता है। मगर इनके दिलों में चोर छुपा हुआ है, तो नतीजा ये होता है कि ये अच्छे मायने नहीं लेते, बुरे मायने को लेते हैं और वलियों पे फिट करते हैं। अब आइए उसके बाद मैं एक तीसरी लुगात आपके सामने ला रहा हूं, लुगात किशोरी के बाद। ये अंग्रेजी की लुगत है, इसका नाम है प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड 21st सेंचुरी। ये डिक्शनरी है जो मुस्तलह डिक्शनरियों में मानी जाती है। इसके अंदर ये उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी है, उर्दू से इंग्लिश में। इसमें भी देखिए आप ख्वाजा के मायने क्या दिए हुए हैं। इसमें लिखा है ख्वाजा के मायने। ख्वाजा, पहला वर्ड लिखा है टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट, यानी ताजीम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ये पहला वर्ड देते हैं। फिर उसके देखते हैं मास्टर, लॉर्ड, रिच पर्सन, टाइकॉन। ये जितने अल्फाज है, बिजनेस मैनेजमेंट, ये जितने अंग्रेजी के अल्फाज है, ये सब आला दर्जे के अल्फाज है। लॉर्ड यानी सरदार, मालिक, बादशाह के लफ्ज में लॉर्ड इस्तेमाल होता है। और पहला ही वर्ड जो डिक्शनरी में दिया वो क्या है? टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट, यानी अदब के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। मगर इन बदबख्तों को देखो कि ये सारे चीजों को छोड़कर ये बुरे मायने की तरफ जाते हैं। चलिए आगे देखिए कि तीसरी मैं चौथी डिक्शनरी बता रहा हूं। ये बहुत पुरानी है, मेरे पास इतने सालों से कि ये रखे रखे भी अब बिल्कुल बोसीदा हो गई। इस डिक्शनरी का नाम है द स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल डिक्शनरी। इसके लिखने वाले गैर मुस्लिम है, किसी मुसलमान ने नहीं लिखा है इंग्लिश में, ये भी इंग्लिश टू उर्दू है। इस डिक्शनरी का सफा नंबर 292 है। इत्तेफाक ये है कि इसका भी सफा नंबर 292 है। इसमें भी ख्वाजा के मायने क्या आया जरा देखिए। ख्वाजा, ए मास्टर, ए मैन ऑफ डिस्टिंक्शन, रिच मर्चेंट। और उसके बाद फौरन लिखा है ख्वाजा खिज़र, यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को भी ख्वाजा कहा जाता है। तो ये सारे अच्छे मायने छोड़े इन्होंने। अब मैं इसके बारे में महराज रब्बानी से ये कहूंगा कि अगर अच्छे मायने छोड़ के आप बुरे लेते हैं तो आपकी हालत क्या है पता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वास फरमाया करते थे और आप सहाबा इकराम से हदीसें बयान करते, तो कुछ मुनाफिकीन जो होते वो पीछे बैठा रहा करते थे जानबूझ के, और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करते थे माज़अल्लाह। सहाबा इकराम रसूलुल्लाह की बयान को और तकरीर को समात फरमा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो होता यह था कि कभी कभी नबी पाक इतना मुश्किल जुमला कह देते या इतनी मुश्किल बात कह देते, सहाबा की समझ में नहीं आती। तो सहाबा इकराम कहते राईना या रसूलल्लाह, उसका मतलब होता था अल्लाह के नबी हम पर रहम कीजिए, हमारी रियायत कीजिए, हमें जरा आसान करके समझाइए, आसान करके बताइए, हम पे करम कीजिए, रहम कीजिए। तो मुनाफिकीन क्या करते थे, उनकी डिक्शनरी में, उनकी लुगत में के मायने होते थे चरावा, भेड़ चराने वाला। तो वो उसको खींच के करते थे राइना या मोहम्मद, और फिर हंसते थे, मतलब ये लेते थे अरे हमारे भेड़ों को चराने वाले, माज़अल्लाह, ये गुस्ताखी थी। एक मर्तबा हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी थे जलील कद्र, वो इन मुनाफिकीन यहूदी थे और मुनाफिक थे, इन यहूदियों की जबान को जानते थे कि इनकी लुगत में, इनकी जबान में इसके मायने जो है बदकारी बुरे होते हैं। एक मरतबा लेट आए ताखिर से साद बिन माज, और वो पीछे बैठ गए, तो अल्लाह के नबी ने जब एक बात कही दी तो इन्होंने वही पुकार के कहा चीख कर, और हंसने लगे। तो इनको जलाल आ गया, साद बिन माज को तलवार निकाली और कहा बदबख्तों में तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम अल्लाह के नबी की तौहीन करते हो।